This is lesson number 2 of functions. In this lesson, we will study the inverse functions. You are well familiar with the inverse of a function, how we find the inverse of a function. तो यहाँ पे इसके लिए की पॉइंट्स हैं, वो आपने याद रखने. की पॉइंट जो है इन्वर्स फाइंड करते वक्त इनको आपने याद रखना है. एफ इन्वर्स एक्स एग्जिस्ट if and only if the function fx is 1 to 1. F inverse x exists if and only if f inverse x exists if and only if the function fx is 1 to 1. ये देखें 1 to 1 फंक्शन होगा तो हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं. The next key point is है the domain of f inverse is the range of fx. The domain of f inverse x is the range of function fx. And the range of f inverse x is same. The range of f inverse x is the domain of fx. These key points are very very important. जो f इनवर्स की डोमेन होती है वही फंक्शन की रेंज होती है. एंड द रेंज ऑफ f इनवर्स की रेंज जो होती है वो डोमेन ऑफ द फंक्शन होती है. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स. तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं. एग्जांपल है वेरी सिंपल एग्जांपल. Suppose we have a function fx is equal to 2x plus 1. तो इसमें इसके लिए हम टेबल बनाते हैं डोमेन और रेंज को समझने के लिए. दिस इज द टेबल फॉर दिस. Suppose this is x and this is fx. We are taking some values of x 0, 1, 2, 3. तो हमारे पास 0 इनपुट वैल्यू के लिए हमारे पास fx की वैल्यू 1 आएगी. 1 पुट करते हैं फंक्शन में तो हमारे पास fx की वैल्यू 3 आती है. 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 5 आता है. 3 पुट करेंगे तो ये fx is 7.
तो we know already that set of values of x are called a domain. These set of values of x is the domain of this function. ये हमारी डोमेन है. इस फंक्शन की डोमेन है. एंड द corresponding set of values of fx are the range of this function. This is the range of this function. Now अब हम इस फंक्शन का इन्वर्स लेते हैं. तो इन्वर्स हमारे पास इन्वर्स फंक्शन का लेने के लिए हम पहले एफ एक्स को वाई इंपोर्ट करते हैं. वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1 मेकिंग x द सब्जेक्ट. x इज इक्वल टू y minus 1 over 2. This shows that f inverse x is equal to x minus 1 over 2. This is the inverse. अब हम एक और टेबल बनाते हैं. तो इसमें this is x and this is f इनवर्स x. देखें f इनवर्स x इनवर्स फंक्शन भी एक फंक्शन ही होता है. f इनवर्स x. नो we are taking x 1. जब हम x को 1 पुट करेंगे इनवर्स फंक्शन में तो हमारे पास f इनवर्स जो है वो 0 आता है. और 3 सपोज x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे f इनवर्स x हमारे पास 1 आता है. 5 पुट करेंगे तो हमारे पास the value of f inverse x is 2, and with the x is equal to 7 and f inverse x, the value of f inverse x is 3. So this is the set of values of x or domain, and the corresponding values of f inverse x are called the range. तो अब आप देख रहे हैं कि दिस इज़ एक्स वैल्यूज़ जो होती हैं वो डोमेन है. तो ये देखें ये हमारे पास ये डोमेन है और दिस इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन. नाउ कंपेयर दीज टू graphs, these two tables. अब देख रहे हैं domain of the function. Now domain of the function is same as the range of inverse. देखें डोमेन जो है फंक्शन की डोमेन है वही इन्वर्स की रेंज है. एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज़ द डोमेन ऑफ द एफ इन्वर्स. तो ये देख रहे हैं क्लियरली डोमेन ऑफ एफ एक्स is the range of f inverse and range of fx is the domain of f inverse. Let's see an example. Now I am giving you an example to find the inverse function. Inverse
इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अंडर रूट -7। ये देखें, जब भी फंक्शन दिया होगा उसके साथ डोमेन गिवन होगी। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। दिस इज द डोमेन। x is greater than or equal to -2. We have to find f inverse x. First step of for this is put fx is equal to y is equal to x plus 2 square root -7. Now we have to make x the subject. For this we will do this x plus 2 square root is equal to y plus 7. Taking squares each side, we get x plus 2 is equal to y plus 7 square. So from here x is equal to -2 plus y plus 7 square. Now f inverse x, this shows that f inverse x is -2 plus x plus 7 square. So this is the inverse of the function. और आप देख सकते हैं जो फंक्शन की डोमेन है वही उसके इन्वर्स की रेंज भी होती है। ये देखें, डोमेन थी आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और ये देखें इन्वर्स की रेंज -2 से ग्रेटर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, -2 प्लस दिस। तो सो ये भी क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये मोर क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 2। First I will write the statement of this example. If fx is function is 5 minus x minus 2 square. This is a quadratic function. The domain for this function is x lies between k and 6. So this is the domain. K is any number. So we have to find part A of this question is state the smallest value of k. State the smallest value of k for which function has an inverse. For which f has an inverse. Part B for this question is for this value of k, find an expression for f inverse x. Find an
expression for f inverse x फाइंड करना है हमने, एंड state the domain and range of f इनवर्स x। ये देखें, अभी हमने जो ऊपर दो की पॉइंट्स देखे हैं, तो वो यहाँ पे वो उनका यूज़ होगा। तो पार्ट ए को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक का स्केच बनाते हैं। ये देखें, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपके सामने, इसको हम स्केच करते हैं। तो स्केच करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी, कि उसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है और डोमेन हमारी क्या है। ये देखें क्लियरली, वर्टेक्स जो है इसका ए पार्ट फॉर स्केच के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्लियर हैं। क्वाड्रेटिक में भी आपने पढ़ा है कि वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं। वर्टेक्स हमारे पास है 2 5, ऊपर देख रहे हैं आप, x माइनस 2 है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा 2, y इज़ 5, तो वर्टेक्स 2 5 है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। और अब हम देखते हैं डोमेन इज़ गिवन, हमारे पास x इज़ लेस देन, ये देखें x लाइज बिटवीन k एंड 6, तो 6 पुट करते हैं। हमारे पास देखते हैं x की वैल्यू 6 हम पुट करके देखते हैं कि y की क्या वैल्यू आती है। x हम 6 पुट करते हैं तो y हमारे पास फंक्शन में x को 6 पुट करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा -11। तो हम इसका स्केच बनाते हैं। इसके लिए स्केच होगा हमारे पास, ये इसका स्केच बनाते हैं। ये स्केच होगा इसका। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व, दैट इज 2 5, and this point is अगेंस्ट x इज इक्वल टू 6। ये देखिए, अभी x 6 पे आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 6 है, और y की वैल्यू हमारे पास जो है वो -11 आती है। तो सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास 6 माइनस 11। x 6 है और y की वैल्यू -11 है। तो state the smallest value of k for which f has an inverse. Inverse is only possible if the function is 1 to 1। अब ये देखें, अगर ये हमारे पास फुल कर्व है तो ये दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 to 1, बिकॉज हम 2 वैल्यूज़ x की 2 वैल्यूज़ के लिए y की सिंगल वैल्यू आएगी। तो सो इफ फुल
कर्व हो तो वो फंक्शन 1 to 1 नहीं होता। तो फॉर द फंक्शन टू हैव एन इन्वर्स इट मस्ट बी 1 to 1 फंक्शन। तो 1 to 1 फंक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास इस कर्व का एक पार्ट जो है, देखिए देयर आर टू पार्ट्स लेफ्ट, मैक्सिमम पॉइंट से एक लेफ़्ट साइड पे हाफ है, दूसरा राइट साइड पे हाफ है। कर्व सिमेट्रिक होता है। ये देखिए मैं आपको शो करता हूँ, ये कर्व सिमेट्रिक होता है अबाउट दिस लाइन। दिस इज अ सिमेट्रिक लाइन। दिस लाइन डिवाइड्स द कर्व इनटू टू एग्जैक्ट हाफ्स। तो अब हमने देखना है कि एक हाफ हमारे पास नहीं होगा तो हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ फुल कर्व जो है ये इसका ये 1 to 1 नहीं होता, ये मैनी टू वन होता है। तो सो हमें इसका एक हाफ जो है वो यहाँ से ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, इसको 1 to 1 फंक्शन बनाना है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा हाफ इसका नहीं होगा तो ये फंक्शन 1 to 1 होगा। तो स्टेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ हैज़ एन इन्वर्स। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, ये देखें ऊपर आपको के की वैल्यू, के जो है वो कोई नंबर है, जिस तरह वो 6 है, ये देख रहे हैं आप। तो x की वैल्यू को k कहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से देखें ये 2 है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x जो होगी वो 2 होगी। इसका मतलब है ये कि हमारे पास जो, ये देखें यहाँ पे x की वैल्यू 2 के बाद x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हैं, ये देखें। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 2 है। तो इसके लिए ग्राफ का लेफ़्ट पार्ट जो है वो हमारे पास हमें ख़त्म करना होगा, तो फिर ये फंक्शन 1 to 1 होगा। इसका मतलब है कि ये पार्ट नहीं होगा, ओनली कर्व जो है वो हमारा ये होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब ये कर्व होगा तो हमारे पास फंक्शन 1 to 1 होगा, तो हाफ ग्राफ रह जाएगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के विल बी 2। ये देखें ये 2 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये मैंने आपको इस तरह ये करके समझाया है। ये देखें यहाँ पे अब हम इसको क्लियर कर देते हैं ताकि वो असल फॉर्म में ही रहे ग्राफ। तो सो for the function to have an inverse, for the function to have an inverse, it must be 1 1 function। 1 1 function, hence smallest value, hence smallest value of k is equal to 2। तो इसी तरह अगर किसी और क्वेश्चन में इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ लेता है तो फिर भी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ किसी और क्वेश्चन में, तो वो ग्रेटेस्ट वैल्यू एक्स की के लिए फिर वो हमने राइट हाफ जो है इस ग्राफ का वो ख़त्म करना है। तो वो लार्जेस्ट वैल्यू भी फिर वो 2 ही होगी। फॉर एनी अदर क्वेश्चन दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। तो पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, part B, for this value of k find an expression for f inverse x। now we have to find the inverse of this quadratic function। हमारे पास फंक्शन है 5 minus x minus 2 whole square। same process, first we will put fx
is equal to y is equal to 5 minus x minus 2 whole square. We have to make x the subject. X minus 2 square is equal to 5 minus y. Taken square root each side, x minus 2 is equal to plus minus 5 minus y square root. X is equal to 2 plus minus 5 minus y square root. So this shows that f inverse x is equal to 2 plus minus 5 minus x. This is the f इनवर्स x. तो अब हमने इसको जस्टिफाई करना है कि ये देखें प्लस माइनस में दो वैल्यूज़ आ रही हैं, प्लस भी और माइनस भी. जस्टिफाई करना है, इनमें से एक होगी एक नहीं होगी. इट डिपेंड्स अपॉन द डोमेन ऑफ द फंक्शन. ये प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ नहीं लेनी होती है. आपने जस्टिफाई करना है कि 2 प्लस 5 माइनस एक्स लेना है या 2 माइनस 5 माइनस एक्स अंडर रूट लेना है. तो सिंस द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 6. ये देखिए यहाँ ग्रेटर देन 2 आ गया. एक्स इज ग्रेटर देन 2 है तो ग्रेटर देन 2 कैसे होता है? व्हेन वी ऐड समथिंग इन 2. तो सो दिस इज जस्टिफाइड दैट आवर इनवर्स इज. This shows that the inverse function is 2 plus 5 minus x. This is the inverse expression. Okay, next we have to, next is and state the domain and range of f inverse. So just we have see in the key points above that domain of f inverse is same as the range of f inverse. The domain of f inverse the domain of f inverse is same as the range of f function. Domain of f inverse is equal to range of function. तो रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो आप देख रहे हैं ऊपर. मैं आपको शो कर रहा हूँ. ये आपका ग्राफ y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है. ये मैं डिफरेंट कलर से आपको यहाँ शो कर रहा हूँ. देखें हमारा रेंज जो है हमारी वो यहाँ से लेके यहाँ तक है. तो सो दिस इज़ द रेंज. दिस इज़ द रेंज of the function, or clearly this varies from minus 11 to 5. So range domain of f inverse will be domain of, this shows that domain of f inverse is minus 11 to 5. This is the domain of f inverse, and the range of f inverse is same as domain of the function. Range of
F inverse is same as domain of F. तो दिस शोज द डोमेन ऑफ F. हमारे पास ऊपर देख रहे हैं आप, डोमेन हमारी जो है फंक्शन की डोमेन है, ये x की वैल्यूज़ हमारे पास 1 to 1 फंक्शन के लिए 2 से लेके 6 तक है। ये देखें यहाँ मैं शो कर रहा हूँ, ये 2 यहाँ पे आता है, x की 2 वैल्यू यहाँ पे आता है 2 और यहाँ तक है। This is the domain of the function, or it is very clear that this lies between 2 and 6. So we will write here the domain of range of f inverse x, range of f inverse x, that is 2 to 6. देखिए रेंज डोमेन ऑफ f के इक्वल है, तो वो हमारे पास जो है रेंज ऑफ f इनवर्स जो है वो 2 से लेके 6 तक है। दिस इज अ रेंज ऑफ f इनवर्स।